তো হুম ভারত প্রথমে ট্রান্সশিপমেন্টটা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিল, মনে করে যে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলবে। কিন্তু বেকায়দা আমরা সামান্য পড়লো, কিন্তু আসলে বেকায়দাটা পড়ে গেছে ভারত। হুম বেকায়দাটা পড়ে গেছে ভারত। এখন বাংলাদেশ আজকে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে ইয়ার্ন, যে সুতা, তো সুতা আমদানি সম্পূর্ণরূপে ব্যান করে দিয়েছে, অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানি সম্পূর্ণরূপে ব্যান করে দিয়েছে। तुम हमको হুম कैप्चर करेगा, बांग्लादेश क्या ऐसे बैठेगा, हाथ ऐसे হুম हाथ धो के बैठेगा, कुछ नहीं करेगा। और तुम्हारा आसपास में दो मुल्लुक है, तुम्हारा एक दादा है एक बाप है। दादा बोल रहा हम चाइना पाकिस्तान को, तो इन लोग ऐसे बैठेगा। और चाइना का হুম इन्वेस्टमेंट अभी बांग्लादेश में है, चाइना छोड़ देगा तुमको। पाकिस्तान হুম का इन्वेस्टमेंट अभी हमारा जो सिलीगुड़ी का करीब जो एयरपोर्ट बेस हो रहा, ये चाइना कर रहा, लेकिन इसका पाकिस्तान मिलके कर रहा। তো আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी अपनारा सुबाई वालो आछन। आज हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से सैफुर रहमान चौधरी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। रहमतुल्लाह वबरकात। चौधरी साहब आपके टॉपिक कुछ के आज के टॉपिक की देर में तरफ आपके बढ़ते पास हैं। फिर। आज के टॉपिक की तरफ हाँ बढ़ते ठीक है। हैं। आपसे पहला सवाल करते हैं। बांग्लादेश ने भी बैन कर दी है इंडियन प्रोडक्ट्स को। तो क्या बांग्लादेश कोई और भी जवाबी वार कर सकता है, या फिर यहां तक ही था बांग्लादेश, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट्स उसको बैन कर सकता है? जिस तरह से बांग्लादेश ने रिसेंटली बड़ा डिसीजन लिया है, यौन के ऊपर पाबंदी लगाई है, बांग्लादेश अब वो नहीं इंपोर्ट करेगा। और इससे पहले ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को कैंसिल किया भारत ने। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एज अ बांग्लादेशी? ধন্যবাদ। আমার আপনার সাথে আবার দেখা হতে হবে। পাকিস্তানি কমকে আমার সালাম মোবারকবাদ। वालेकुम আসসালামু सलाम। আলাইকুম। তো যেটা ভারত করেছে, ভারত বাংলাদেশ নিজের থেকে কিন্তু প্রথমে কোনো কিছু করে না। पहले बांग्लादेश का तरफ से कोई कदम बांग्लादेश नहीं उठाया। ठीक। প্রথম নিজের থেকে কোনো পদক্ষেপ বাংলাদেশ উঠায়নি। ভারতের প্রথম দিকে উঠাচ্ছে। বাংলাদেশ চাচ্ছে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে নেওয়ার জন্য, কিন্তু ভারত বরাবর ব্যাক গিয়ারে চলছে। তো हम्म ভারত প্রথমে ট্রান্সশিপমেন্টটা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিল, মনে করে যে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলবে। কিন্তু বেকায়দা আমরা সামান্য পড়লো, কিন্তু আসলে বেকায়দাটা পড়ে গেছে ভারত। हम्म বেকায়দাটা পড়ে গেছে ভারত। এখন বাংলাদেশ আজকে যেটা আমরা जानते পেরেছি যে यार्न, जो सूता, बांग्ला में सूता बोलता है और उर्दू में क्या यस। बोलते हैं, वो सूता सूत बोलता है। सूत उर्दू में सूत सूत बोलता है और बोलते हैं। हाँ सूता, ये बांग्ला में सूता बोलता है, বাংলাতে সুতা বলে। তো সুতা আমদানি সম্পূর্ণরূপে ব্যান করে দিয়েছে, অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানি সম্পূর্ণরূপে ব্যান করে দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশ ভারত থেকে অনেক বেশি আমদানি করে ইন কম্পেয়ার উইথ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া আমাদের থেকে অনেক কম আমদানি করে। তো हम्म এখন আপনার একটা স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন, আমাদের সাথে আমাদেরকে সাথে সম্পর্কটা খারাপ করে এখন বাংলাদেশ যে ব্যান করে দিল, বাংলাদেশ ডেফিনিট সুতা আমদানি ভারত থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ অন্য কোনো সোর্স পেয়েছে এবং পাকিস্তানও পেয়েছে, পাকিস্তান থেকেও আমদানি করবে, আর অন্যান্য দেশ থেকেও আমদানি করবে। ডেফিনিট বাংলাদেশ গট এ নিউ প্লেস টু ইম্পোর্ট দিস ইয়ার। তো সেটা বাংলাদেশ পাওয়াতে বাংলাদেশ এখন করে দিচ্ছে। যে এখন আপনি একটা জিনিস দেখেন, লসটা কার বেশি? ভারতের লস বেশি, কারণ বাংলাদেশ ভারত থেকে অনেক বেশি ইম্পোর্ট করতো ইন কম্পেয়ার উইথ বাংলাদেশ। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া আমাদের থেকে কম ইম্পোর্ট করে। তো এখন আমরা যেহেতু ভারতের, কারণ আমরা যখন বন্ধ করে দিয়েছি, এখন লসটা বেশি হচ্ছে কিন্তু ভারতের। বাংলাদেশের লসটা কম, বাংলাদেশ এটা পুষিয়ে উঠবে। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, কোন একটা পানিকে আপনি কোন একটা জায়গায় বন্ধ করে রাখতে পারবেন না। পানি যখন ঢালতে থাকবে তো পানি उसका एक जो गति है, उसके चलने का राह है, रास्ता है, वो निकल के लेगा। পানিকে আপনি যখন বন্ধ করতে পারবেন না, পানি তার নিজস্ব পথ বেছে নিবে। তো বাংলাদেশ নিজের পথ বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের সাথে দুশ্মনী চায় না, কিন্তু মোদি কেন জানি, মোদি শেখ হাসিনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি এখনো। বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশে কমকে প্রাধান্য না দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, এটা আমি মনে করি। এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে নরেন্দ্র মোদী। গতকালকে যেটা আমি সংবাদ জানতে পারলাম যে মমতা ব্যানার্জি মোদীকে বলেছে, আপ
छुप छुप करके हो सकता, अगर हो सकता तो प्रोफेसर यूनुस साहब के साथ एक मीटिंग, सीक्रेट एक हाँ मीटिंग कर लीजिए। वो सीक्रेट मीटिंग करने से आपको भी फायदा होगा, भारत के भी फायदा होगा। আমি বাংলাতে বলছি, মমতা ব্যানার্জি বলেছে একটি কথা যে বাংলাদেশের সাথে, অর্থাৎ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সাথে মোদি সাহেব আপনি তাড়াতাড়ি গোপন হলে একটা মিটিং করে ফয়সালা করেন। এতে ভারতের ফায়দা, আপনি মোদির ফায়দা। हम्म चौधरी साहब, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो ये बात बीजिंग में जाकर की थी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कि गार्डियन ऑफ द ओशन बांग्लादेश है और बे ऑफ बंगाल का मालिक सरदार हम हैं, यानी बांग्लादेश है। तो वो इंडियन कह रहे हैं ये हमने सिर्फ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल की है, अब बनकर दिखाओ गार्डियन, अब बनकर दिखाओ बड़ा भाई, हमने आपके सब कुछ काट के रख दिया है। भाई साहब, ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ইউনূস সাহেব जो बताया ना, যেটা বলেছে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব, এটা কোনো যুদ্ধের জন্য, কোনো যেমন একটা সামরিক পরিস্থিতি, একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, এই ধরনের কোনো কিছু বলে নাই। উনি সহজভাবে বলেছেন যে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা, বাণিজ্য, हम्म যে কারবার। তো যেহেতু উনি একটা কথা বলেছেন যে ভারত একটা বড় শক্তিশালী দেশ, পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী, ভারত একটা প্রতিবেশী, চীন একটা প্রতিবেশী এবং ভারত একটা প্রতিবেশী, দুটোটা অনেক বড় শক্তিশালী একটা দেশ, আমরা মধ্যে আছি। এই চীন যখন উপরের দিকে উঠতে থাকবে, ভারত যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে, স্বাভাবিক নিয়মে তাদেরকে ধরে আমরাও উপরের দিকে উঠে। এটা একটা ये एक सफेद एक सवाल किया, एक सफेद एक बात किया, ऐसे कोई जंग लगाने के लिए नहीं किया। बिजनेस के बारे में बोला, वही जो बोला सेवन सिस्टर के बारे में, ये पूरा सेवन सिस्टर, ये तो बात तो हकीकत में तो उसके साथ तो कोई रिवर नहीं है। तो उसको अगर कारोबार करने हो ना, सो बांग्लादेश के अंदर करने से उसको बहुत पैसा कम खर्च होता, उसे खर्चा बहुत कम लगता। अगर वो बांग्लादेश को यूज करता तो बांग्लादेश को वो यूज करेगा, हम भी सेवन सिस्टर हमारा सामान एक्सपोर्ट करेगा, वही हमारा उसको सामान हमसे वो एक्सपोर्ट करेगा बाहर में, हमारा जो रिवर है यूज करके। तो इसमें बुरा क्या किया। एक ही बात पे फिर नेपाल के बारे में बोला, नेपाल बेलाও বলেছে যে নেপালের কোনো সেভেন সিস্টার মতো নেপালের কোনো রিভার নাই। তো নেপাল আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে আমাদের ভিতর দিয়ে, তো আমরা রাজি আছি, নেপালও রাজি, আমরা রাজি। শুধু ভারতের যে चिकन नेक के मध्य जो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो है चिकन नेक का, वो हम लोगों को तो एक आने जाने रास्ता देने से इसमें बुरा क्या किया। इसमें क्या जंग करने के लिए बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो देने से नेपाल को भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा वो और उनको भारत डर को है भी कि फायदा चाइना होगा, आ भारत के जाएगा। अंदर आ गया। चौधरी साहब, चौधरी ठीक साहब, एक ही बात, इंडिया को डर है एक ही चाइना आ बात, एक जाएगा। ही बात, एक ही बात भूटान भी बोला। ये तो बुरा कुछ नहीं किया इसको। आप एक अभी भारत के दिमाग में, नरेंद्र मोदी के दिमाग में, इंडिया के दिमाग में ऐसे हो, हम लोग कोई अच्छा बोलने से, हम तो दीन बोल रहे, उन लोग बोलता रात, हम लोग सादा बोल रहे, उन लोग बोलता काल, हमारा हर चीज में उन लोग कुछ न कुछ निकलता है ऐसे। ये पूरा जो झूठ बोल के झूठ फैला के रखता पूरा राह तो क्या रास्ते। बांग्लादेश जो ट्रांजिट फैसिलिटी भारत इस्तेमाल कर रहा है, चिकन नेक ये सेवन सिस्टर तक जाता है बांग्लादेश के रास्ते से, हाईवे से, तो क्या बांग्लादेश को उनकी जो फैसिलिटी है ट्रांजिट वो कैंसिल नहीं कर देनी चाहिए इंडिया की? हम जो बोल रहा, इंडिया को तो जरूर, इंडिया को तो फायदा ले रहा बांग्लादेश का अंदर वही ट्रांजिट हाँ लेके। तो जी अभी टिट फॉर टैट इंडिया तो ऐसे कर रहा, जो हम जो भी बोलता उसको गलत निकलता, उसको गलत फायदा निकलता। तो ये बंद करने चाहिए। क्यों? इंडिया हमारा तो अच्छा नहीं चाह रहा। ये जो नरेंद्र मोदी को जो एडवाइस किया ममता बनर्जी को एडवाइस नरेंद्र मोदी, अभी नरेंद्र मोदी भारत को बैक गियर में चला, बैक गियर में चला, वो हमेशा बैक गियर में चला रहा है। ये भारत के लिए बहुत नुकसान होगा। भारत का जो इकोनॉमी, भारतेर जो অর্থনীতি, রুপির, ভারতের ইতিহাসে রুপির দাম সর্বনিম্ন পর্যায়ে ইন কম্পেয়ার উইথ ডলার। তো একটা দেশের ধ্বংসের ইয়েটা কখন থেকে শুরু হয়? যখন তার অর্থনীতি সংকুচিত হতে থাকে। उसका जब इकोनॉमी जब एकदम छोटा होते जा, ये पहले से इसको, ये वो मुल्क के लिए बहुत खतरा का बात है। वो खतरा वेस्ट बंगाल में
वेस्ट बंगाल में जो सर, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये खाली वेस्ट बंगाल है। हम लोग जो नहीं थे नहीं नहीं, इम्पोर्ट करता। ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो फसादात हो रहे हैं ना, वक्फ बिल हाँ आया है हाँ इसमें हाँ। भारत में, तो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो हाथ है वो बांग्लादेश का है। इंडियन मीडिया ये सब आरोप लगा रहा है। कुछ, सब कुछ। अरे भाई इतना बड़ा भारत, तुम अगर सब कुछ बांग्लादेश में हो तो तुम क्या कर रहा? तुम क्या कर रहे? इतना बड़ा भारत तुम क्या कर रहा? अगर सब कुछ बांग्लादेश होने से इतना घबराता है, ये छोटा एक बांग्लादेश का तुम लोग इतना घबराता, सब कुछ में तुम लोग ये दोष निकालता। अब हमारा जो हम लोग गलत किया ऐसे निकालता तुम लोग फायदा। तुम लोग को हर बारी में तुम लोग हम लोगों को इल्जाम लगाते तुम लोग, ये अच्छा नहीं है भारत। मोदी तुम्हारा भारत को तुम बैक गियर में चला रहा। अभी में दिमाग में सोच में आओ, तुम हकीकत में आओ। बांग्लादेश के साथ ये जो ममता बनर्जी जो कुछ एडवाइस किया वो अच्छा किया। तुम अभी बैठ के हमारा जो लीडर है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ बैठ के तुम ये जो हमारा तुम्हारा बीच में जो कुछ हो रहा है ये सब फैसला कर लीजिए। तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। क्यों भाई खाली फुकट जंग करने से क्या फायदा है? जंग कोई नहीं, एक मुल्क के लिए, दो मुल्क के लिए जंग को कभी भी फायदा नहीं लेता। बेशक इसी तरह। तो ये इंडियन जो दिफाई तर्जियाकार है ना, इंडियन आर्मी एक्स आर्मी ऑफिसर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बात की है ना सेवन सिस्टर वाली, कि हमें समंदर लगता है, सी पोर्ट है, सेवन सिस्टर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नहीं लगता, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो भाई ऐसा करो कि कैप्चर कर लो रंगपुर को, चिटागोंग को, तो फिर ये अच्छा मसला भी हल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी अच्छा, सॉल्व हो जाएगी, ये जो समंदर वाली। अच्छा ये इंडियन जो एक्स आर्मी ऑफिसर ऐसी बात किया, ठीक है ना? अभी उन लोग रिटायर पर्सन, उन लोगों को कोई काम तो नहीं है, कुछ काम है, कुछ काम है भाई। ऐसे बोलने से वो हाईलाइट में चले आएगा। हकीकत में तुम एक मिलिट्री पर्सन, तुम ऐसा बात कैसे कर सकता? तुम हमको कैप्चर करेगा, बांग्लादेश के ऐसे बैठेगा, हाथ ऐसे हाथ धो के बैठेगा, कुछ नहीं करेगा। और तुम्हारा आसपास में दो मुल्क है, तुम्हारा एक दादा है एक बाप है। दादा बोल रहा हम चाइना पाकिस्तान को, तो इन लोग ऐसे बैठेगा। और चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी बांग्लादेश में है, चाइना छोड़ देगा तुमको। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट अभी हमारा जो सिलीगुड़ी का करीब जो एयरपोर्ट बेस हो रहा, ये चाइना कर रहा, लेकिन इसका पाकिस्तान मिलके कर रहा। हाँ, ये लालमोहनीहाट। पाकिस्तान लालमोहनीहाट जो एयर बेस, ये हाँ हाँ, पाकिस्तान का वहाँ इंटरेस्ट है, चाइना के भी इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है। वी हैव इंटरेस्ट फॉर दिस, सो वी गिव बोथ दिस कंट्री, वी इन्वॉल्व दिस बोथ कंट्री टू डू वर्क देयर। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहेंगे बांग्लादेशियों को, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेशी हैं उनमें काफी गुस्सा पाया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर वो कह रहे हैं कि इनकी जितनी भी जो प्रोडक्ट्स है इंडियन की वो बैन कर दी जाए, क्योंकि ये इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो आप क्या कहेंगे चौधरी साहब, आखिरी सवाल है आपसे। अच्छा, हम बोल रहा ये इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री है। भारत ये दुनिया में खाली एक मुल्क नहीं है। बांग्लादेश का आसपास ये दुनिया में बहुत बहुत मुल्क है। बांग्लादेश को क्या, इंडिया क्या, हम लोगों के क्या बिना पैसा बगैर हम लोगों को देता? कुछ नहीं देता हम लोगों को। हम पैसे देते इंडिया से लेते, तुम नहीं देते क्या हुआ? तुम तो हम हाँ, लोगों को प्याज बन के दिया, आलू बन के दिया। ये साल का पहले जो साल हम लोग गुजर चुका हसीना के वक्त, रमजान में हम लोग 120 में हम लोग प्याज का केजी 1 केजी 1 किलो खरीद किया। अभी ये रमजान में हम सैफुर रहमान खरीद किया 30 रुपया में प्याज। तुम तो बन के दे, तो प्याज तो तुम तो बोला हम लोग नहीं खा के मरेगा, हम लोग बहुत सारे तो मर गया। अभी तुम लोग को जैसे बात कर रहा, ये हमको दिमाग में नहीं आता कि ऐसा कैसे बात करते हैं लोग। इतना एक बड़ा मुल्क है, तुम लोग को लिटरेसी तुम लोगों के ज्यादा है बोल रहा तुम लोग, तो तुम लोग ऐसा बात कैसे करता जो इलीगल, लॉजिकल नहीं है। ठीक। ये लॉजिकल नहीं है तुम्हारा बातचीत में, तुम ऐसा बात करने से तो नहीं होगा। अभी पूरा दुनिया में तुम लोग को नफरत फेंकता है तुम लोगों को। हाँ, तो तुम खाली बांग्लादेश के ऊपर ऐसा आंखें उठा था। तुम्हारा जो हाथ और पांव बंद करके वो जो ट्रम्प भेजा, एक एक शब्द किया उन लोगों के बारे में, करो ना। एक शब्द तुम्हारा जो आदमी वहां से भेजा 117 118 करके प्लेन में, एक शब्द किया, करो हिम्मत है तो करके देखा हम लोगों को। हम लोग समझेगा तुम लोग बाप का बेटा है। ऐसा नहीं करेगा तुम लोग। छोटा एक मुल्क ये में बांग्लादेश को ऐसे कर रहा है।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अशोक साहब, धन्यवाद। आपने एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए आज अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, आप सैफ रहमान चौधरी साहब के एनालिसिस से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना धन्यवाद। और मैं अपने चैनल आखिर का में एक बात बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जी। आखिर में एक बात बोल रहे हैं हमने। हम पिछले जो 2-3 दफा आपके साथ 4 दफा जो इंटरव्यू किया, वो कमेंट सेक्शन में हमने देखा पाकिस्तान के बहुत सारे आदमी देखता हमारा ये इंटरव्यू। उन यस, लोग बोलता है ये ट्रांसलेट करके दिए। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा उर्दू में कोशिश करता बोलने के लिए। हमारे ये बातचीत से धन्यवाद। पाकिस्तान के बहुत सारे आदमी तो उसको मालूम होगा क्या बोलना चाह रहा हम। हर इंसान को तो बांग्ला नहीं आता। और हमारे यहाँ बिल्कुल। बांग्लादेश के आदमी, ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश का आदमी मेजर परसेंटेज या उर्दू उनको समझ में आता है, हिंदी समझ में आता। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जी।